So they are nitrogens because they are poisonous gas producers, where arsenic and antimony are metalloids and bismuth is a typical metal. NaNO3 we call as Chile saltpeter, and potassium nitrate as Indian saltpeter, which is found in the form of proteins and nucleic acid in plants and animals. Phosphorus is the 11th most abundant element in Earth's crust. And we have Ca9PO4 6.CaX2, जिसमें हमारे पास फ्लोरेपेटाइट है और क्लोरेपेटाइट. OH भी हो सकता है बाय द वे, X की जगह. Arsenic, antimony and bismuth are found mainly as sulfide minerals. रेडियस का रेगुलर ऑर्डर है, देयर इज नो वेरिएशन. आयनाइजेशन एंथैल्पी का रेगुलर ऑर्डर है, डाउन द ग्रुप इट इज डिक्रीजिंग. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो क्योंकि ये हाफ फिल्ड होते हैं तो इसलिए वी हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन व्हिच इज -7. सो नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, and then we have bismuth here and then antimony. So this is one exception that you need to remember for bismuth and antimony. So down the group, what is happening? It's becoming more and more positive. Electronegativity wise also, if you see, antimony and bismuth have same electronegativity. Melting point wise, there is a difference, or lowest melting point arsenic का है, the bismuth is in between. ठीक है. तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी एंड आर्सेनिक. सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, the least phosphorus, then nitrogen, then arsenic, and also bismuth and antimony have changed positions. So arsenic stays where it is, nitrogen, phosphorus interchange, and antimony, bismuth interchange. That's how you remember boiling point. And density increases down the group. Okay. Then we talk about the physical properties and what is the reason that nitrogen, phosphorus are non-metals and these are metalloids. So that is due to decrease in ionization enthalpy and increase in atomic size. So assertion reason में वो आ सकता है. You can once try the structure of N5 plus, क्योंकि क्या nitrogen does not show catenation except for 3 structures, N2, N3 minus and N5 plus. So can you try drawing the structure of N5 plus and can you tell me the formal charge on central nitrogen? N3 minus is azide, N2 we can draw. I am asking you to draw N5 plus. ड्रॉ किया किसी ने? N5 Formal plus. चार्ज +1 होगा. नहीं, वो तो +1 तो नेट चार्ज. -1. You have to tell me. One of the resonating structures. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसका शेप कैसा होगा? व्हाट विल बी इट्स शेप? और सेंट्रल नाइट्रोजन पे क्या फॉर्मल चार्ज होगा? Any answers? सर बटरफ्लाई शेप का. No, no, no. कुशल, स्नेह, शुभ्रान. So it'd be different at different resonating structures, right? हाँ हाँ, तो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग कौन सा होगा वो भी बताना है अपने, इफ दैट इज द केस. I think -1. -1. शेप क्या होगी इसकी? Tetrahedral at the central nitrogen. नो नो, शेप इज नॉट गलत. N5 प्लस का देखो कैसे बनेगा. देखो एक तो ये बन सकता है N5 प्लस, N डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड. इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस 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 माइनस माइनस, नेट इज +1. बट दिस विल बी नॉट बी सो स्टेबल. व्हाई? बिकॉज यहाँ कंसेक्यूटिव एटम्स पे लाइक चार्जेस आ रहे हैं.
ठीक है. Experimentally, it was found to be bent in shape, which is only possible if you draw a structure like this. ठीक है ना. और इसमें लेस नंबर ऑफ फॉर्मल चार्जेस आर देयर. और इसी का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इसका मिरर इमेज है वो बना सकते हो आप. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ N5 plus is, है ना. The shape is bent. Then except nitrogen, all the elements show allotropy, which we have already discussed. और कैटेनेशन मैंने आपको बता ही दिया. मैंने N2H4 का गॉश इफेक्ट आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि NN बॉन्ड लेंथ जैसी एक्सपेक्टेड होती है वैसी ही आती है. वाई? बिकॉज वो इसके एंटी बॉन्डिंग में करेगा, ये इसके एंटी बॉन्डिंग में करेगा. इस तरीके से गॉश कन्फर्मेशन आता है. देन वी टॉक अबाउट द बॉन्ड एनर्जीज. सो कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, phosphorus phosphorus, and arsenic arsenic. We have 353.3, 160.8, 201.6 and 147.4. तो ये वैल्यूज याद नहीं करनी, बट एटलीस्ट वी कैन रिमेम्बर कि कार्बन कार्बन की सिग्निफिकेंटली हायर होती है और फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है. ऑक्सीडेशन स्टेट्स -3 इज लेस कॉमन बिकॉज इट हैपेंस ओनली फॉर नॉन मेटल्स. नाइट्रोजन फॉस्फोरस में तो है, बट बिस्मथ में भी दिखती है, बट इट्स रियरली फॉर्म. कहाँ पर दिखेगी? मैग्नीशियम बिस्मथाइड में, Mg3Bi2. और डाउन द ग्रुप क्या होता है कि बिस्मथ का +5 is not so stable. Only well documented compound of +5 is BiF5. ठीक है. और हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में भी हमने पढ़ा था, बिस्मथेट आयन, सोडियम बिस्मथेट हमने बनाया. ठीक है. सो दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट. देन वी टॉक अबाउट और इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिकॉज ऑफ विच बिस्मथ 3+ इज मोर स्टेबल देन +5. अगर हमारे पास इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड्स हैं तो हीटिंग पे डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है. और ये चीज Hg22+ में भी होता है, H3PO2 में भी होता है, H3PO3 में भी होता है. ठीक है. और यहाँ पर जैसे हमने Hg2I2 को हीट किया तो Hg(I2) and Hg is formed. So nitrogen has a unique ability to form p-pi multiple bonds with itself and with other elements having small size and high electronegativity. Heavier elements of this group do not form p-pi bonds. क्यों? क्योंकि उनके atomic orbitals are too large and diffused. और नाइट्रोजन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है इसलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी इज एक्सेप्शनली हाई. तो नाइट्रोजन जो फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी है वो P4, AS4 और Sb4 टाइप में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बिस्मथ जो है मेटालिक बॉन्ड बनाता है एलिमेंटल स्टेट में. और सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन PP बॉन्ड. वाई? बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शंस. अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर कि अगर हम लोग देखें तो R3P डबल बॉन्ड हो पॉसिबल है, बट R3NO में अगर हम लोग देखें तो डबल बॉन्ड नहीं बन रहा होगा, रादर प्लस एंड माइनस. तो अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें तो P डबल बॉन्ड हो की शॉर्टर होनी चाहिए कि N सिंगल बॉन्ड हो की शॉर्टर होनी चाहिए? E double. नो. व्हाट मैटर्स इज साइज. तो N का साइज छोटा है तो ये वाली बॉन्ड लेंथ ही छोटी होगी, भले ही सिंगल बॉन्ड हो तो भी, है ना, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है. तो phosphorus and arsenic can form d-pi bond also with transition metals when their compounds like PET3 and AsPH3 act as ligands. Next we talk about ammonia, phosphine, arsine, stilbene and bismuthine. इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं. तो इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर. बॉन्ड लेंथ इज सिंपल. डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ ड्रैगोज रूल. ड्रैगोज रूल की वजह से क्या होगा कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा. और अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो क्योंकि इनकी बॉन्ड्स वीक होते जाएंगे तो दिस विल हैव द मैक्सिमम रिड्यूसिंग कैरेक्टर एंड दिस विल हैव द लीस्ट. और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी सबसे कम होगी और इसकी सबसे ज्यादा होगी. जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता. हाईएस्ट इसका ही होता है, फिर इसका होता है, then comes ammonia, then arsine and then phosphine. So that is done on the basis of van der Waals forces. तो हम ऐसे लिख लेंगे कि अमोनिया का H बॉन्डिंग की वजह से, और फिर इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे. तो अमोनिया कम्स ऑन द बीच.
और जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि अमोनिया फॉस्फीन आर्सिन स्टिल्बीन, यहाँ पर देखो 195.2 139.5 156.7 185, यानी कि यहाँ पर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थोड़ा बहुत कुछ कह सकते हो। तो अमोनिया, देन वी हैव SbH3, देन वी हैव ASH3 एंड देन वी हैव PH3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ऑक्सीजन की तरफ रिएक्टिविटी अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें, और इस पे भी क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ठीक है ना। तो जो ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के वो प्योरली एसिडिक है, आर्सेनिक और एंटीमनी के एम्फोटेरिक, और बिस्मथ के प्रिडोमिनेटली बेसिक, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, तो NCl5 बनता नहीं है। उसका रीजन ये है कि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं नाइट्रोजन के पास, और NF3 और ट्राइक्लोराइड्स भी हाईली हाइलाइट्स भी हाईली अनस्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर NF3 विच इज स्टेबल, है ना। NCl3 इज एन एक्सप्लोसिव लिक्विड। NCl3 व्हेन फॉल्स ऑन द फ्लोर, एक्सप्लोजन के ना कर, या फ्लोर पे गिरा हुआ और आप उस पे चलते भी हो तो भी उनके बॉन्ड्स टूटने की आवाज आती है, ठीक है ना। और Ni3 जो होता है वो तो फेदर एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि उसमें से अगर हम फेदर घुमा दें तो पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो पिंक हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रेडोमिनेटली कोवेलेंट इन नेचर, यानी कि BiF3 क्या होगा, आयनिक होगा। मेटल्स की टुवर्ड्स रिएक्टिविटी तो मैंने बताया था, मैग्नीशियम बिस्मथाइड, जिंक एंटीमोनाइट, सोडियम आर्सेनाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम नाइट्राइड। हम डाइनाइट्रोजन की बात करें अगर, तो डाइनाइट्रोजन को हम कमर्शियली कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय द लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ठीक है, कमर्शियली, ठीक है। डाइनाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लिक्विड ऑक्सीजन से कम है, ठीक है ना। तो लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइट। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट लिया तो अपने पास क्या है, NH4NO2, और इसको आप हीट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, N2 + H2, है ना। इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ NO एंड HNO3 आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, और उनको हम रिमूव करते हैं बाय पासिंग द गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, सो वी रिमूव दैम। देन अमोनियम डाइक्रोमेट की भी हम हीटिंग कर सकते हैं, जिससे हमारे पास N2H2 और Cr2O3 आ जाता है, एंड वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन, वेरी प्योर। और ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में एंड इवेंचुअली इन जेई मेन एज वेल, कि अगर हमें प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो हम कैसे करेंगे, तो बेरियम एजाइड का डिकम्पोजिशन करो या सोडियम एजाइड का करो, at 300 degree centigrade you get Na+N2 Ba+N2, and they are in solid state, so that's why this is used in the airbags of car। ये क्वेश्चन आया था अभी NaCGS का जो सेकंड स्टेज होता है INJSO, उसमें आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। तो कार के एयर बैग्स में सोडियम एजाइड होता है ना, विच डिकम्पोजेस टू गिव Na एंड N2, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो Ni3 देन NBr3 देन NCl3 देन NF3, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें N2F2 और N2F2 में दो बन सकते हैं। नाउ which among the following is more stable? Which among the following is more stable? Trans. ट्रांस या एंटी? France. ट्रांस। हाँ, कुशल, शुभ्रान, स्नेह, France. शुभ्रान, यूर देयर? Yes, sir. क्या आंसर नहीं दे रहे पे? मैं सोच रहा था stable towards what exactly? जस्ट लाइक दैट, स्टेबल, मतलब डिकम्पोज इजीली कौन सा कर जाए। Decompose on heating. हाँ, Okay, sir. तो आंसर तो दो। एक सेकेंड सर। कुशल? हाँ सर, मैं वही सोच रहा था, मतलब आपने पूछा है तो कुछ खास होगा इसीलिए सोच रहा था। हाँ, तो आप सही कह रहे हो। आंसर इज सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, एंड दिस इज ड्यू टू सिस इफेक्ट, है ना। सेम थिंग गोज विद दिस ऑल्सो। अगर हम लोग C2H2F2 लेते हैं तो अगेन दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, सो द नेम ऑफ द इफेक्ट इज सिस। So not anything more than this is not required in terms of explanation.
क्लोरीन का तो हमको पता है क्योंकि क्लोरीन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन प्लस एम और माइनस एम दोनों कर सकता है, जिसकी वजह से उसका सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस. बट हियर this cis is more stable than trans, and here also cis is more stable than trans. That effect is known as cis effect. So you remember that only, and the order of stability. Okay. Now we come to the other methods of preparation of nitrogen. So as I had discussed in salt analysis, कि अगर नाइट्रोजन अपने लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन कन्वर्ट इट इनटू जनरली एलिमेंटल स्टेट. So we are using sodium hypochlorite, which is a good oxidizing agent, which will itself be reduced into Cl minus, and this will be formed. Similarly, ammonia and calcium oxychloride again, nitrogen and calcium chloride. अच्छा, अब मैंने एक चीज और बताई थी कि हाइड्रोजन को क्लोरीन से प्यार है, या हाइड्रोजन को ब्रोमीन से प्यार है, हेलोजन से प्यार है. तो क्या होगा, यहाँ से ये HBr ले लेगा. HBr ले लेगा तो बेचारा नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा, N2 बना. लेकिन अगर हम एमोनिया एक्सेस में लेंगे तो पहले तो पूरा N2 बन जाएगा, और ब्रोमीन कंज्यूम होने के बाद वो सारा का सारा जब HBr में बन गया हो, तो वो HBr जो बचा हुआ एमोनिया होगा एक्सेस में, उसके साथ रिएक्ट करके अपने को देगा एमोनियम ब्रोमाइड. अगर वही चीज हम यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे होते तो क्या होता कि क्लोरीन जो है पहले हाइड्रोजन को तो छीन लेगा, और फिर यहाँ पे N2 बन जाएगा. तो क्या बनेगा, N2 प्लस HCl. और मान लो आप क्लोरीन एक्सेस में ले लेते फिर, तो क्या होता कि वो फिर क्लोरीन नाइट्रोजन से रिएक्ट करता, और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या देता अपने को, NCl. सो दैट्स हाउ NCl3 इज प्रिपेयर्ड. ठीक है. अच्छा, हम और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉपर, हीटेड कॉपर, है ना. तो NO विल कन्वर्ट इनटू N2. ठीक है. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्लोरीन और एमोनिया एक्सेस में, और क्लोरीन और एमोनिया, क्लोरीन जिसमें, एमोनिया जिसमें लिमिटेड है, तो NCl3 विच इज ट्रेमेंडसली एक्सप्लोसिव. आर ऑल दीज रिएक्शंस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. फिजिकल प्रॉपर्टीज वाइज देखें अगर हम लोग, तो डाइनाइट्रोजन इज कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक. उसके दो स्टेबल आइसोटोप्स हैं. हाँ, उसका लो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और पानी में बहुत ही कम सॉलिबिलिटी होती है. ठीक है. रिएक्शन विथ मेटल, वो लिथियम और मैग्नीशियम के साथ नाइट्राइड बनाता है. लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है. और नॉन मेटल्स के साथ ऐसे ही रिएक्ट नहीं करता है. अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, कैटलिस्ट, it can react with hydrogen to form ammonia and with oxygen to form NO. This process is known as Buckland-Hyde process. It can be absorbed on calcium carbide to give calcium cyanamide plus carbon. Calcium cyanamide plus carbon is known as nitrogen, which is used as a fertilizer, which on hydrolysis will produce calcium carbonate plus ammonia plus carbon. ठीक है ना. और ये अमोनिया कैसे आया, क्योंकि पहले ये जो था ये हाइड्रोलाइज होकर अपने को देता है यूरिया, और फिर वो यूरिया का फर्दर हाइड्रोलाइसिस होकर अपने पास आता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है. सो दैट्स द होल प्रोसेस. यू वांट मी टू राइट और यू हैव अंडरस्टूड? Understood. अंडरस्टूड. ओके. हम लोग यहाँ पे आते हैं, व्हाई डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर. रीजन है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाइट्राइट, सॉल्ट लाइक और आयनिक. तो ये हो गए अपने पास नाइट्राइट. Na3N and K3N I have highlighted because they are highly unstable. We do have calcium nitrate, magnesium nitrate, and beryllium nitrate, all of which are ionic. है ना. This is not covalent, by the way. कोवलेंट नाइट्राइड यहाँ पर कौन कौन बनाता है, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये कोवलेंट बनाते हैं. और इंटरस्टिशियल नाइट्राइड we have scandium, titanium, zirconium, hafnium, lanthanum, and there is hardness in these nitrides. ठीक है. All the octahedral voids are occupied by nitrogen atoms. Hence the formula is Mn. ठीक है. What is the use for the manufacture of ammonia, for the manufacture of calcium cyanamide, and it is used as a in an inert atmosphere in iron and steel industry. Liquid dinitrogen is used as a refrigerant to preserve biological materials, food items, and in cryosurgery. Then we have ammonia. So ammonia is present in small quantities in air and soil, where it is formed by the decay of nitrogenous organic matter, example urea. तो ये मैंने अभी आपको बताया था, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने पास ये आ जाता है. स्मॉल स्केल प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी अमोनियम सॉल्ट का अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया मस्ट बी लिबरेटेड. ठीक है. तो अमोनिया प्लस वाटर प्लस सॉल्ट
लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डन थ्रू हेबर्स प्रोसेस, और उसमें एक्सोथर्मिक होता है और टेम्परेचर हम लो लेते हैं, बट दैट इज स्टिल 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि परसेंटेज यील्ड घट जाती है, और इस पे जेई एडवांस में क्वेश्चन भी आ चुका है, जिसमें पूछा गया था कि भाई इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो ज्यादा सही रहेगा इफ T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ऑब्वियसली ये वाला ग्राफ ज्यादा सही रहेगा, ये वाला, सॉरी, दिस वन। इनिशियली क्योंकि एमोनिया होती ही नहीं है, तो इनिशियली परसेंटेज यील्ड when you start will be more, and then it falls sharply because then rate of backward also increases and rate of backward exceeds rate of forward। ठीक है। कैटलिस्ट हम कौन सा यूज करते हैं? प्रेशर इज वेरी हाई, 200 atm। कैटलिस्ट हम यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ K2 एंड Al2O3, एंड दिस इज द फ्लो चार्ट जिसमें हम लोग यहाँ H2N2 कंप्रेसर, और यहाँ पे कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड Al2O3 प्लस K2, और नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया, या लिक्विड अमोनिया आ गया। इस तरीके से चलता है प्रोसेस। ठीक है। हम अमोनिया को कैसे ड्राई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो यू कैन यूज कैल्शियम ऑक्साइड बट नॉट P4O10 कॉन्क H2SO4 और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बिकॉज इट फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट CaCl2.8NH3। अदर प्रिपरेटरी मेथड्स, हम नाइट्रेट या नाइट्राइट का रिडक्शन कर सकते हैं यूजिंग डेवडाज एलॉय, जो कि हमने पढ़ा था सॉल्ट में। तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया में। ठीक है। मेटल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी अमोनिया बन जाता है। अमोनिया इज ए कलरलेस एंड पंजेंट गैस, and के boiling points and freezing points are respectively, which we may not remember, that's okay। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैंने हाईलाइट किया है कि in the solid and liquid state it is associated through hydrogen bonds as in the case of water, and that accounts for its higher melting and boiling points than expected, and ammonia gas does not do hydrogen bonding। why? Because of flipping। ठीक है। also on an average each ammonia molecule can only form 2 hydrogen bonds। why? Because it has only one hydrogen bond acceptor, so to balance it out it should only be one hydrogen bond only, so other two on an average do not participate in hydrogen bonding। ठीक है। बेसिक कैरेक्टर होता है क्योंकि अमोनिया एक्वा स्टेट में NH4+ एंड OH- बनाता है। एज ए वीक बेस इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस। जैसे हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट और अमोनिया हाइड्रोक्साइड लिया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जिंक हाइड्रोक्साइड का, इस तरह यहाँ पे ब्राउन PPT आया। ठीक है ना। In ammonia molecule, the presence of lone pair of electrons on nitrogen atom makes it as a Lewis base। तो इस copper 2+ के साथ कॉम्प्लेक्स Ag+ के साथ AgCl बना, और फिर अमोनिया के साथ वो कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है। तो can you tell me what happens if we add few drops of HCl to this? People there or sleeping? It precipitates. Yes, AgCl precipitates. Good. And can you tell me what happens if I pass H2S? The PPT of AGS. No reaction. No reaction will occur, you get Ag2S का precipitate। Ag2S को डिसॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है ना यार, सॉल्ट में यही तो पढ़ा था अपन ने, H2S में बनेगा अपने पास Ag2S का precipitate। और AgS बोला आयुष आपने, इट विल बी Ag2S, आपने भी गलती की। अच्छा, एक और चीज करते हैं इसमें, सपोज आई ऐड KCN, what A happens? complex of AgCl2 AgCN whole minus. And cyanogen gas. No, sorry. No observable change. मेरे हिसाब से क्या KCN करेगा वो, मतलब इट्स ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हियर, क्या KCN ये काम करेगा या नहीं करेगा, दैट इज अ क्वेश्चन दैट विल डिपेंड। AgCN2 is a better, stronger complex. More Most- shear, more हाँ। stable complex. यस, सो इट विल डू इट। गुड। ठीक है। अच्छा, बाय द वे एसिडिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हम सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया लेते हैं, और वाटर में वो वीक है ना। सो
ACOH इसका मतलब is a stronger acid than NH4 plus and hence it is leveled by ammonia. This effect is known as leveling effect. So this is an information कि आपको याद रखना है कि एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है लिक्विड अमोनिया में, जिसका मतलब ये है कि एसिटिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर देन NH4 प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हम जैसे लेते हैं एसिटिक एसिड gives acetate ion plus H plus, ammonia plus H plus gives NH4 plus, H2O plus H plus gives H3O plus, और बेसिसिटी ऑर्डर क्या है NH3 greater than H2। हम हाइड्रोलिसिस और एमोनोलिसिस जब करते हैं तो हाइड्रोलिसिस तो अपने को पता है, वही सेम अगर हम एमोनोलिसिस करें तो क्या हो जाएगा SiNH2 4 and then you get Si3N4 and ammonia. The rate of hydrolysis and hemolysis will be affected by the presence of HCl vapor and NH4Cl vapor respectively. Then ammonia is used for various nitrogenous fertilizers in the manufacture of inorganic nitrogen compounds, most important being nitric acid. Liquid ammonia is also used as a refrigerant. ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर ये है जो हमें पता है। अब इनके रिएक्शंस और इनके फिजिकल अपीयरेंस एंड केमिकल नेचर, तो इनके स्ट्रक्चर्स तो अपने को पता है, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ आर दे मैन्युफैक्चर, और इस पे भी जेई में क्वेश्चन आया है ना। तो अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, तो जब अमोनियम नाइट्राइड को कर रहे थे तो N2, अमोनियम नाइट्रेट को करेंगे तो N2, NaNO2 FeSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पर क्या होगा Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस NaHSO4 प्लस H2O प्लस N। ठीक है, so what is the property of N2? It's colorless gas used as an anesthetic, it's neutral and supports combustion, है ना। और NO क्या है? कलरलेस गैस, न्यूट्रल एंड पैरामैग्नेट। सिमिलरली N2O3 अगर हम लोग लेते हैं तो NO plus N2O4 at -30 degree centigrade gives N2O3. So that's how N2O3 is manufactured, and it's a pale blue solid when at a very low temperature. ठीक है, melting point is -100.1 degree centigrade. It's acidic and an intense blue liquid at -30. सिमिलरली NO2 बनाना है तो लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो NO2 PbNO2 ब्राउन गैस, और N2O4 अगर आपको बनाना है तो NO2 और N2O4। यहाँ पर क्या है कि NO2 और NO2 डायमराइज करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो दैट्स व्हाई इट्स एक्सोथर्मिक। हीट करेंगे तो वापस डिकम्पोज हो जाएगा, तो दैट इज एंडोथर्मिक। N2O5 हम कैसे बना सकते हैं? हम HNO3 को P4O10 से ट्रीट करें तो P4O10 इज अ डिहाइड्रेटिंग, वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो HNO3 को कन्वर्ट कर देगा N2O5 में और खुद HPO3 बनाएगा। ये क्वेश्चन आया था JEE Advanced 2017। So you are not going to report H3PO4 by the way, you should be reporting HPO3. Okay, so it's a colorless solid, it's an ionic solid actually, NO2 plus and NO3 minus, and it's acidic in nature. तो ये reactions, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल नेचर वी मस्ट नो। स्ट्रक्चर्स वी आर ऑलरेडी अवेयर, N2O3 का ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो करेक्ट। और क्वेश्चन इस तरीके से आया भी था जेई में कि हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ N2O3, तो वेदर यू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर और दिस स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स विल स्टिल रिमेन द सेम। वी ऑल्सो नीड टू कंपेयर, मतलब इस तरीके से जैसे हमने ये डायग्राम लिया है ना, और मुझे क्या कंपेयर करना है? y प्राइम एंड y, z प्राइम एंड z, x प्राइम एंड x, t प्राइम एंड t, and θ1 and θ2. Would you like to compare, or you have already done it earlier? Logically we have to reason out, you don't have to remember the values. करोगे आप लोग, ट्राई करोगे? Y prime is greater than Z prime is greater than T prime. नहीं नहीं, ऐसा नहीं कंपेयर करना है। आई थिंक मैं आपको फिर से बताता हूँ, मुझे y प्राइम और y को कंपेयर करना है, z प्राइम और z को करना है, x प्राइम और x को करना है, t प्राइम और t, और θ1 और θ2। θ2 is greater than θ1. चलो वो तो इजी था, दैट वाज इजी, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है तो लोन पेयर ज्यादा रिपेयर करेगा तो θ1 विल डिक्रीज, so θ2 is greater than θ1. ओके, Y prime is greater than Y. why it is so? This character. हाँ ठीक, एस कैरेक्टर, ठीक।
What about T and T prime? T prime is greater than T. ये तो पूरी तरह से गलत होगा। क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड और O माइनस, तो रेजोनेंस होगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। यहाँ कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो T prime will be smaller than T. You understood, Shubhran? Z will be greater than Z prime. Z will be greater than Z prime. Why it is so? Again, P character now. Hmm? Or what about X prime and X? X prime is greater than X. What makes you think like that? In N2O3, for the left nitrogen, the S character of the lone pair will increase. So the S character of the NN bond will decrease. And as the S character of the NN bond decreases, the S character of the NO bonds in the right nitrogen will increase. So because the S character increases, the bond angle increases and the bond length decreases. Chalo. Anyone else wants to say anything? Ayush, you want to say anything? X prime almost equal to X. Srinath? The X greater than X prime. चलो देख, ये देखो एनसीईआरटी का डेटा है ना, तो लेट्स ट्राई टू सी। ये है हमारे पास N2O3, ये हमारे पास N2O4 है ना। तो x और x प्राइम अगर देखते हैं तो ये कितना है, 135 है, ये 130, तो x इज ग्रेटर देन x प्राइम। शुभ्रान, आप यही कह रहे थे या आप x प्राइम ग्रेटर देन x कह रहे थे? I don't remember, sir. 1 second. और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देखो, दिस बॉन्ड लेंथ एंड दिस बॉन्ड लेंथ, ये सिर्फ आयुष ने सही बोला, z एंड z प्राइम आर ऑलमोस्ट इक्वल। ये देखो, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल। एक्चुअली बॉन्ड एंगल का पता तो चले। अच्छा, बॉन्ड एंगल का बोल रहे थे? हाँ, नहीं, बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो बॉन्ड लेंथ आर ऑलमोस्ट इक्वल, z एंड z प्राइम, है ना। एंड y प्राइम तो इजी था, t एंड t प्राइम वाज इजी, θ1 θ2 वाज इजी। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दिस z एंड z प्राइम का और x एंड x प्राइम। x एंड x प्राइम, हाउ कैन आई एक्सप्लेन, श्रीनाथ? दक्षिता? नो एक्सप्लेनेशन। x एंड x प्राइम का एक्सप्लेनेशन मैं देखो ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, कि हम ये इस पे अगर इसका इफेक्ट देखें NO का और इस NO2 का देखें, तो ये NO2 will exert stronger minus I than this NO on this. As a result, the electron density will shift more towards this nitrogen, and hence the repulsion will increase. So X will be greater than X prime. All of you buy that logic from me? Yes. Yes. Okay. So so these angles, ये सारे एनसीईआरटी के हैं और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन हमने किया अभी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा ये भी देख लो एक बार, ऐसा है तो एक बार ये भी देख लेने में बुराई नहीं है। N2O5 में ये जो एंगल है और ये NO2 का जो एंगल है, दैट इज ऑल्सो सेम, 134 134, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर बॉन्ड लेंथ छोटी है, 120 पिकोमीटर है, यहाँ पर वी हैव अ लॉन्गर, यहाँ पर वी हैव अ, सॉरी ये 120 है, 119 है, दीज आर ऑल्सो वेरी क्लोज, एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज Single bond.
Am I audible now? Yes, sir. Screen is visible? Yes, sir. Recording in progress. ओके, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग यहाँ पर अगर कंसंट्रेटेड लेते हैं, डाइल्यूट लेते हैं और वेरी डाइल्यूट लेते हैं, तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड विद जिंक? कंसंट्रेटेड में NO2, डाइल्यूट में N2। वेरी डाइल्यूट में NH4NO। यस, NH4। इसी तरह हम जब NO की बात करते हैं तो हम कॉपर का 1:1 डाइल्यूट HNO3 के साथ लेते हैं, हॉट एंड डाइल्यूट, तो कॉपर नाइट्रेट प्लस NO, KNO3 FeSO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आयरन का ऑक्सीडेशन, NO3 converts into NO which reacts with FeSO4 to give FeSO4.NO। पोस्ट वाल प्रोसेस लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ammonia plus O2 at 6 atmosphere 750 degree centigrade platinum catalyst, you get NO plus H2O। हम N2O3 कैसे बना सकते हैं? अब देखो ये इज वेरी सिमिलर टू जब हमने P4O10 लिया था, तो P4O10 ना लेके अब मैं AS2O3 ले रहा हूँ HNO3 के साथ, तो एक्चुअल में तो N2O5 बनना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बनाया, N2O3, और क्योंकि मैंने N2O3 बनाया तो मैंने इसका रिडक्शन किया, तो इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया, तो H3ASO4। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी कैटेगराइज्ड एज डिहाइड्रेशन रिडॉक्स। ठीक है, कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ 6 मोलर, यू गेट कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस NO2 which can be cooled at -30 degree centigrade to give this। मेटल नाइट्रेट को हीट किया तो MO प्लस NO2 प्लस O2, कॉपर लेड एंड सिल्वर HNO3 के साथ मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2। अगर यहाँ मैंने 6 मोलर की जगह 8 मोलर लिया होता तो क्या होता, सिर्फ NO2 रिपोर्ट करता, 6 मोलर है तो NO भी रिपोर्ट किया। N25 मैंने बताया था P2O5 के साथ देगा, दिस इज ओनली डिहाइड्रेशन है, दिस इज डिहाइड्रेशन रिडॉक्स, दोनों में अंतर। AgNO3 Cl2 ड्राई गैस, दिस काइंड ऑफ क्लोरिनेशन रोस्टिंग, तो AgCl एंड देन N2O5 प्लस O2, तो क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो किसी ना किसी का तो ऑक्सीडेशन होना ही पड़ेगा, नाइट्रोजन का हो नहीं सकता, सिल्वर का हो नहीं सकता, तो सिर्फ ऑक्सीजन बचा, इसलिए O2 हमने रिपोर्ट किया। ठीक है ना, एंड दिस आल्सो कन्वर्ट्स इनटू N2O5। प्रॉपर्टीज, तो डिकम्पोज कर जाते हैं N2 500 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव 2N2 प्लस O2। NO at 800 degree centigrade gives N2 plus O2। N2O3 at room temperature gives NO2 and NO। NO2 at 620 gives NO and O2, and N2O4, which is a white solid at -11, converts into brown gas। N2O5 is a colorless solid, 30 degree centigrade पे N2O5 yellow liquid, 40 degree centigrade पे NO2 and O2। अब ये टेम्परेचर्स नहीं याद रहेंगे, है ना, बट एटलीस्ट यू नो कि डिकम्पोज करने से क्या होता है। तो ये सब क्या है, सपोर्टर्स ऑफ कंबशन, दीज ऑल आर सपोर्टर्स ऑफ कंबशन, और इसलिए इनके रिएक्शंस जब हम देखेंगे तो विल सी देम एज कंबशन रिएक्शंस। N2O की सॉलिबिलिटी अगर देखें तो N2 एंड NO आर न्यूट्रल, तो NaOH के साथ इसलिए कोई रिएक्शन नहीं, एंड दे आर N2 इज फेयरली सॉल्युबल, व्हाइल कैन यू टेल मी N2O, अगर मैं बोलूं N2O इज एन एनहाइड्राइड ऑफ एन एसिड, तो ट्रू या फॉल्स? हाइपोनाइट्रस का और इट्स ट्रू, इट्स हाइपोनाइट्रस एसिड का होता है, क्योंकि अगर हम H2 ऐड करें तो क्या होगा, H2N2O2, बट स्टिल वी कॉल इट एज अ न्यूट्रल ऑक्साइड ओनली। ठीक है, H2N2O2 अगर हम ड्रॉ करें तो वो ऐसा बनता है, इसके दो बनते हैं फॉर्म्स, एक सिन है और एक एंटी है। NO is sparingly soluble in water and produces neutral solution।
N2O3 विद वाटर गिव्स HNO2, और इसलिए इसको एनाइड्राइड ऑफ HNO2 बोलते हैं। NO2 में जब हम H2O ऐड करते हैं तो क्या होता है, 2 मोल में HNO2 प्लस HNO3, इसलिए ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। NaOH से ट्रीट करते हैं तो NaNO2 प्लस NaNO3, N2O5 इज एन एनाइड्राइड ऑफ HNO3। तो सबसे पहले N2O के हम रिएक्शंस अगर देखें तो दैट्स अ सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड बेटर देन एयर, क्योंकि एयर में 20% ही है और इसमें अपने पास 33% आ रहा है। तो सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, हाइड्रोजन, इन सबको ये कंबस्ट करेगा तो क्या होगा, SO2, P4O10, MgO, Na2O, CuO, H2O, और खुद किस में जाएगा, एलिमेंटल स्टेट N2, तो अपना ऑक्सीजन दे देगा। इस तरह जब मैं कार्बन के साथ लिखूंगा N2, तो शुड आई राइट CO और CO2? CO. CO, ठीक है, नॉट CO2। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं NO, तो इट बर्न्स NO टू गिव NO2, ठीक है, एंड इट सपोर्ट्स कंबशन आल्सो फॉर मोल्टन सल्फर एंड हॉट फास्फोरस। तो सल्फर प्लस NO गिव्स SO2 प्लस N2, phosphorus plus NO gives P4O10 plus N2, again supporter of combustion, ठीक है। it can be absorbed in FeSO4, reducing property, खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो मैंगनीज तो +2 में ही जाएगा, Cl +1 में है तो -1 में जा रहा है, ठीक है। खुद किस में जा रहा है, HNO3 एंड HNO3। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है क्योंकि ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो SO2 या H2S को ऑक्सीडाइज कर सकता है इनटू H2SO4, एंड ये क्योंकि लोएस्ट पॉसिबल में, तो ये किस में जाएगा, सल्फर में। खुद ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो NO किस में जाएगा, N2O में, मतलब खुद जब रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा, N2O में। सो दिस इज हाउ NO बिहेव्स, है ना। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसका एनालिसिस जो है ना, जब हम कर रहे थे तो एक मेरा स्टूडेंट था, JEE एडवांस 2022, है ना, ऑल इंडिया रैंक 67, उसने पूजन शाह है ना, अभी वो इंस्टीट्यूट टॉपर है IIT दिल्ली का, तो उसने बोला कि सर देखो इसको हम ऐसे देखें, SnCl2HCl है और NO है। तो उसने कहा देखो सर, आप लेते हो नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं तो नाइट्रोसोबेंजीन, फिर 5NHOH और 5NH2OH बनता है। तो उसी तरह से अगर हम इसे ट्रीट करें NO का, तो NO का जब हम SnCl2HCl लेंगे तो वो उतना स्ट्रांग होगा नहीं, तो हम क्या रिपोर्ट करते हैं, 5NHOH रिपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, NH2OH रिपोर्ट कर देंगे। यू अंडरस्टैंड NH2OH कैसे बना लॉजिकली, Yes. है ना। और दिस मेथड इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिलम, ठीक है। NO combines with X2 to produce NOx, ठीक है ना। और NOCl जो हम बनाते हैं वो टिल्टन रिएजेंट कहलाता है ना। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम NaNO2 प्लस HCl इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, अगर मैं RNH2 लेता हूं तो इन दोनों केसेस व्हाट इज द डिफरेंस, एनी आंसर्स? In the first one, the del plus is on Cl, but in the second one, it's on NO. व्हाट इज द प्रोडक्ट? तो एक वाले में ROH बनेगा, फिर दूसरे वाले में RCl। किसमें RCl, किसमें ROH? NaNO2 HCl लेंगे तो ROH, NOCl लेंगे तो RCl, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, अगर हम N2O3 की देखें तो और कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। NO2 की बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अगेन कंबशन, सल्फर SO2, वो खुद किसमें गया, NO, ठीक है। फॉस्फोरस P2O5, C प्लस NO2 CO प्लस NO, SO2 प्लस NO2 प्लस H2O। तो अगर H2 नहीं डालते तो SO3 होता, SO3 प्लस H2O के आगे H2SO4, H2S प्लस NO2 तो एलिमेंटल स्टेट, NO2 किसमें गया, NO, CO प्लस NO2 क्या होगा, CO2 प्लस NO, Ki प्लस NO2 gives I2 प्लस KNO2, reducing प्रॉपर्टी ऑफ NO2, तो इसको तो रिड्यूस कर देगा और खुद किस में चला जाएगा, HNO3। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन, कैन यू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन?
वन nascent ऑक्सीजन एनोड होकर आयनाइज करने के बीच में ऑक्सीजन चलती ओजोन क्या देगा? O2 प्लस O2 plus nascent oxygen, Nascent ends with NO2, the unpaired electron. हाँ, तो हम NO2 को डायमराइज कर देते हैं N2O4 में, है ना। और यहाँ से O3 और O2 और O2 माइनस आ रहा है, तो वो O2 माइनस इसमें ऐड कर दो तो यू गेट N2O5, है ना। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे NO2 प्लस O3 लिया, तो एक्चुअल में क्या होगा, पहले बना NO3 प्लस O2, तो इसमें से O3 में से जो ऑक्सीजन है वो इसमें गया, और ये आया अपने पास, वो NO3 फिर NO2 से कंबाइन करके अपने को देता है N2O5। तो जो O2 आ रहा है अपने पास, वो सारा का सारा इसी से आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है ना। अच्छा, एंड दिस रिएक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोकेमिकल स्मॉग। ये क्वेश्चन आ सकता है जेईई एडवांस, है ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। ठीक है, हम जैसे I2O5 और CO लेते थे, तो उसी तरह से हम I2 और N2O5 से I2O5 को जनरेट कर सकते हैं, एंड दिस गिव्स NO2, एंड दिस I2O5 इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ CO। कैसे? CO से यहाँ I2 बना और CO2 बना, और फिर ये हाइपोक्साइड टाइट्रेट किया। अब देखो N2O5 अगर हम सॉलिड लेते हैं और NaCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो N25 सॉलिड एग्जिस्ट इज NO2 प्लस एंड NO3 माइनस, तो NO2 प्लस Cl माइनस के साथ NO3 माइनस Na प्लस के साथ, और इसलिए हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया NaNO3 एंड NO2Cl, which proves the existence of ion pair NO2 plus and NO3 minus. Next we come to oxo acids of nitrogen, so H2N2O2, HNO2 and HNO3. नाइट्रस एसिड अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो मेटल नाइट्राइड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ HNO2, N2O3 plus H2O gives HNO2। अब क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, तो इट कैन शो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर देखो I माइनस है तो एलिमेंटल स्टेट में जाएगा, और खुद किस में चला गया, NO में। अगेन हम SnCl2 और HCl ले रहे हैं, तो वहां हमने NO का किया था तो NH2OH बना था। अब यहाँ HNO2 का कर रहे हैं हम लोग, तो इट कन्वर्ट्स इनटू NO। ऐसा नहीं कि आप इसमें NH2OH बना दोगे, यू अंडरस्टैंड, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है अपने को। तो HNO2 विल कन्वर्ट इनटू NO, SO2 और HNO2 लेंगे तो अगेन कंबशन, तो SO3, और फिर वो H2 के साथ क्या देगा, H2SO4, तो इसलिए ये किस में कन्वर्ट हुआ, NO में। इसी तरह H2S प्लस HNO2, तो ये सल्फर में और NO में। FeSO4 will get oxidized to Fe2SO4 whole thrice, and this will convert into N. Na3ASO3 and HNO2 is Na3ASO4 and reducing property अगर हम लोग देखें तो KMNO4 के साथ HNO3, K2CR27 के साथ भी HNO3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी HNO3। हम अगर यूरिया के साथ लेते हैं तो ये हमने पढ़ा था द बेस्ट मेथड टू डिस्ट्रॉय नाइट्राइट, कौन सा था, विच रिएजेंट, सॉल्ट में पढ़ा था हमने, Sulfamic. सल्फामिक, सल्फामिक एसिड, दिस इज सल्फामिक एसिड फॉर डिस्ट्रॉइंग द नाइट्राइट, है ना। यूरिया से भी हम N2 बनाते हैं, अमोनिया के साथ पहले हमने अमोनियम नाइट्राइट बनाया, हीट किया तो नाइट्रोजन बना, और ये एल्काइल अमीन, है ना, और एनिलीन, थायोयूरिया और सल्फामिक एसिड से हम ये डिस्ट्रॉय करते हैं नाइट्राइट। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू नाइट्रिक एसिड। सो इट वाज नेम्ड aqua fortis, मीनिंग स्ट्रॉन्ग वाटर, बाय alchemists। ठीक है, लैब मेथड क्या है, हम हीट करते हैं इसको कॉन्क H2SO4 के साथ। लार्ज स्केल प्रिपरेशन क्या होती है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, तो वो कैसे करते हैं, तो अमोनिया प्लस O2 एंड वी हैव platinum gauge 500 Kelvin 9 bar, and nitric oxide thus formed combines with oxygen giving NO2. So nitrogen dioxide so formed dissolves in water to give HNO3 plus N, and this is one of the reactions in acid rain, again environmental chemistry। और ये तो क्या है कि मिक्स्ड एनाइड्राइड है, तो इसको एक्चुअली हम लोग ब्रेक कर सकते हैं दो स्टेप में। कैसे ब्रेक कर रहे हैं कि पहले NO2 और H2O, मतलब 2 मोल NO2 के लिए H2O के साथ अपने को क्या देगा, HNO2 plus HNO3, और फिर HNO2 will again disproportionate to give NO2 plus, मतलब NO plus
H2O, ये आएगा ना, NO प्लस H2O, और वो NO जो है हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया, ठीक है। So NO thus formed is recycled and aqueous HNO3 can be concentrated. Here है ना, HNO2 gives HNO3 plus NO plus H2O है, और वो NO फिर हम लोग यूज करते हैं इस तरीके से। तो Birkeland-Eyde प्रोसेस में हम क्या करते हैं, N2NO2 at 3000 डिग्री सेंटीग्रेड gives NO, and this is an endothermic process, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग HNO3 बना सकते हैं। NO thus formed is recycled and aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68% by mass. Further concentration to 98% can be achieved by dehydration with conch H2SO4. Physical properties देखें तो it has extremely corrosive action on the skin and causes painful sores. It's a colorless liquid. लैब ग्रेड जो होता है वो 68% है, और वो नाइट्रिक एसिड में येलो या ब्राउन कलर आता है, क्यों? बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट इनटू NO2. The yellow or brown color of the acid can be removed by warming it to 60 to 80 degree centigrade and bubbling dry air through it. ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर अपने को पता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, HNO3 gives H2O plus NO2 plus O, HNO3 gives NO plus O. Oxidation of non-metals, तो नॉन मेटल्स को वो किसमें करता है, एक फॉर्म ऑफ द एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, आयोडिक एसिड। और यहाँ पर अगर हम प्रॉपर सब्सक्रिप्ट के साथ लें तो दिस इज द बैलेंसिंग। मेटलॉइड्स को भी ऑक्सीडाइज करता है, आर्सेनिक एसिड, एंटीमोनिक एसिड, मेटास्टेनिक एसिड, ठीक है। और मेटास्टेनिक एसिड इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? Soluble. नो, इट्स अ वाइट PPT, हमने पढ़ा था, Yes, sir. ठीक है। देन SO2 becomes ic acid, sulfuric acid, ठीक है। देन H2S plus HNO3, NO2 plus H2O plus sulfur, अगेन एलिमेंटल स्टेट, FeSO4 Fe2 प्लस में गया, ये NO में गया, Ki I minus I2 में गया। The KNO3 form is used in gunpowder. Gunpowder contains KNO3 plus sulfur plus charcoal. HBr है लोएस्ट पॉसिबल में, तो एलिमेंटल स्टेट, HI है तो एलिमेंटल स्टेट। फेरस सल्फाइड लिया हमने, तो फेरिक सल्फेट प्लस NO2। स्टैनस क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू स्टैनिक क्लोराइड। हम HNO3 के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, वही सेम लॉजिक। तो यहाँ पर हम लोग के पास हाइड्रोक्सिलामीन तो बना ही, साथ साथ में जो NH2 की ये फिनाइल की जगह अमोनिया हो गया, वो अमोनिया HNO3 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्रेट दे रहा है। तो वी आर एक्चुअली गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ दीस टू विद SnCl2HCl विद HNO3, तो NH2 एंड अमोनियम नाइट्रेट। समझ में आया लॉजिक क्या है इसका बनने का? Yes, sir. ठीक। देन नेक्स्ट वी कम टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हेन nitric acid is poured on it, turpentine oil bursts into flames when treated with fuming nitric acid. And toluene is oxidized to benzoic acid with dilute HNO3. Cane sugar is oxidized to oxalic acid. तो ये cane sugar है, oxalic acid। अब ये वाले स्टेटमेंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे NCERT में दिए हैं। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट में या आ सकता है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। So that is the property of nitric acid because of its highly oxidizing nature. Reaction with metals we have already studied in salt. So I'm skipping this section क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, already we are done with it. Next we come to pickling. Now pickling of a metal surface is done, which involves treatment which is used to remove impurities such as stains, inorganic contaminants, rust or scale from ferrous metals, copper, precious metals, and aluminum alloys. A solution called pickle liquor, which contains strong acids, is used to remove surface impurities. प्रोटीन्स पे जब हम एक्शन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड अटैक्स प्रोटीन्स फॉर्मिंग अ येलो नाइट्रो कंपाउंड कॉल्ड xanthoprotein, and it therefore renders stains skin and renders wool yellow. And यही xanthoprotein टेस्ट हम लोग करते भी हैं प्रोटीन्स। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है कि नाइट्रेट और फॉस्फेट में नाइट्रेट और लेस अबंडेंट इन अर्थ स्ट्रेस। उसका रीजन ये है कि ऑल नाइट्रेट्स इस दुनिया में जितने भी वो सॉल्युबल है, फॉस्फेट्स आर इनसॉल्युबल। तो यूजेस मैंने आपको बता दिए नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट वी कम टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, जो कि हमने ऑलरेडी एलोट्रोप्स में पढ़ लिया है।
तो इसलिए अगेन आई एम स्किपिंग दिस सेक्शन क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. वी कम टू प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस. नाउ हियर बोन ऐश और एपेटाइट रॉक. तो हमने कैल्शियम फॉस्फेट प्लस सिलिका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड लिया हमने. तो P2O5 एंड कैल्शियम सिलिकेट. और कार्बन अगर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर P2O5 के साथ वी आर रिपोर्टिंग P4 एंड ऑब्वियसली विल नॉट रिपोर्ट CO2, सो वी रिपोर्ट CO. इसी तरह कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर हम लोग लेते हैं इसके साथ तो यू गेट फॉस्फोरिक एसिड विच ऑन हीटिंग अप टू 320 विल गिव मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जिसका जब हम कार्बन से रिडक्शन करते हैं तो हम क्या लेंगे H2CO एंड P4. गोल इज टारगेट इज टू प्रिपेयर P4. ठीक है. तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन के साथ और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को 1500 डिग्री से. बाकी रिएक्शंस हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ एक फॉर्म ऑफ द एसिड तो इसका रिडक्शन हो जाए KiO3 and H2SO4 अगेन एक फॉर्म ऑफ द एसिड और I2 आ जाए. ठीक है. सोडियम और फॉस्फोरस गिव्स Na3P, Mg and phosphorus gives Mg3P to calcium phosphate and CO3P2. अच्छा, नेक्स्ट वी कम टू फॉस्फीन. अब उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फाइड. और जब हम ऐसा करते हैं तो फॉस्फीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिमिलरली HCl एंड दिस अगेन फॉस्फीन एंड कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है. लैब प्रिपरेशन कैसे होता है? बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विथ concentrated NaOH in an atmosphere of CO2. ठीक है. और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है क्योंकि एनी नॉन मेटल विद स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स डिस्प्रोपोर्शनेशन. अब फॉस्फीन इज अ वेरी वीक बेस, तो वो क्या होता है HCl या HF से रिएक्ट नहीं करता, HI और HBr से रिएक्ट करके देता है फॉस्फोनियम आयोडाइड एंड फॉस्फोनियम ब्रोमाइड. अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, मैंने पूछा भी था शायद आप लोगों से कि जब हम लोग PH4F लेते हैं और PH3F2 लेते हैं और PH2F3 लेते हैं और PHF4 लेते हैं और PH4I लेते हैं, PH4Cl लेते हैं, PH4Br लेते हैं, इनमें से कौन कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं? किया हुआ है ना अपन ने क्वेश्चन. PH2F3 PHF4 ये एग्जिस्ट करेंगे. हाँ और कोई सा? PH4I, PH4Br. और कोई सा? What is the difference between this phosphorus and this phosphorus? Hybridization. Yes. यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. और यही चीज यहाँ पर लिखी. PH4I में not hybridized, right? नहीं, हाइब्रिडाइज है ना PH4I में Because फॉस्फोरस. it's from PH3 and PH3 is not hybridized. अरे क्या बात कर दी यार तूने. PH3 का जब आप H+ से ट्रीटमेंट करके PH4+ बनाते हो तो Oh, sorry, sir. Sorry. हाँ. Then it's tetrahedral. ठीक है. तो अब व्हाट इज द यूज ये है कि जब हम HI या HBr से बनाते हैं इसको, इस सॉल्ट का ट्रीटमेंट यदि मैं KOH से करता हूं तो वी गेट फॉस्फीन. तो हम यूज ही क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा आता है? क्योंकि मैंने बताया ना, कोई भी अमोनियम सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस विल गिव अमोनिया, तो फॉस्फोनियम सॉल्ट विल गिव फॉस्फीन. करते इसलिए कि फॉस्फीन को अगर प्यूरिफाई करना है तो दिस इज द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन. ठीक है. तो प्योर फॉस्फीन इज नॉन इन्फ्लेमेबल बट बिकम्स इन्फ्लेमेबल owing to the presence of P2H4 और P4 vapors. ठीक है. To purify it from the impurities, it is absorbed in HI to form phosphonium iodide, which on treating with KOH gives off phosphine. तो P2H4 will o' the wisp. will o' the wisp क्या होता है पता है आपको? जुगनू पता है? जुगनू. Have you ever seen it? फायरफ्लाई. हाँ, जो रात के वक्त कई बार वो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं ना जो ग्लो करते हैं, ब्लिंक करते हैं, है ना? तो वो विल ओ द विस्प उस तरीके का एक्टिविटी होती है इनके प्रेजेंस की वजह से इन द मार्शेस. विल ओ द विस्प इज अ phosphorescent light seen hovering or floating at night on marshy ground, thought to result from combustion of natural gases. तो ये प्रॉपर्टी है P2H4 की. ठीक है. तो इन्फ्लेमेबल होता है ना ये.
अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है? फॉस्फोनियम आयोडाइड का KOH से रिएक्शन, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का H2SO4 के साथ, सो प्योरेस्ट फॉस्फीन इज ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। H3PO3 को हीट करें, H3PO2 को हीट करें तो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, ठीक है। Phosphine is a colorless gas with rotten fish smell and is highly poisonous, and it explodes in contact with traces of oxidizing agents like HNO3, chlorine, and bromine. It is slightly soluble in water but soluble in CS2 क्योंकि उतना पोलर नहीं होता है. And solution of phosphine in water decomposes in presence of light, giving red phosphorus and hydrogen. ठीक है. Chemical properties देखें तो absorbed in copper sulfate to give Cu3P2, HgCl2 to give Hg3P2, ठीक है. And it's weakly basic like ammonia, तो इसलिए PH3 plus HBr. Then अगर हम इसका combustion करते हैं at 150 डिग्री सेंटीग्रेड तो obviously क्या होगा, P2O5 and H2. इस तरह क्लोरिनेशन करेंगे तो PCl3 and HCl. N2O के साथ इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग, तो ऑब्वियसली ये अब N2O के बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो N2 बन जाएगा और फॉस्फीन जो है वो H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. Then phosphine plus AgNO3 gives Ag3P.3AgNO3, which is yellow PPT. Ag3P and 3AgNO3 on standing gives Ag का black PPT and H3PO3, ठीक है. This we need to remember. फॉस्फीन का हम फॉर्मल्डिहाइड और HCl के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो वी गेट दिस, है ना. और ये हो कैसे रहा है, ये यहाँ अटैक कर रहा है प्रोटोनेट होके इसको, और अपने पास एक वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स टाइप का आ रहा है, ठीक है. दिस इज अ व्हाइट कलरलेस सॉलिड व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फायर प्रूफ कॉटन फैब्रिक्स. और फॉस्फीन भी एमोनिया की तरह ही एडिशन प्रोडक्ट्स बनाता है, CO2, Cl2, AlCl3, SnCl4. फॉस्फीन को इसलिए हम एब्जॉर्ब किसमें करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. और इसको हम ध्यान कैसे रखेंगे कि भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में तो P4 बनना चाहिए, बट एट द सेम टाइम क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन को क्लोरीन से प्यार है तो HCl तो बन ही रहा है, और यहाँ पर साथ में अपने पास क्या आ गया, P4 और क्लोरीन जो है वो PCl3 देगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया. इस तरह एमोनिया के केस में वी आर रिपोर्टिंग नाइट्रोजन, ठीक है, and calcium chloride and water. So the spontaneous combustion of phosphine is technically used in Holmes signals. Containers containing calcium carbide and calcium phosphide, उसको हम पियर्स करके सी में फेंक देते हैं तो क्या होता है, ये H2 से रिएक्ट करके यहाँ फॉस्फीन और एसिटाइलिन प्रोड्यूस करता है, और जब वो बर्न करती हैं तो दे सर्व एज ए सिग्नल. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन्स, है ना. फॉस्फोरस हैलाइड्स तो PX3 एंड PX5, है ना. तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हम कैसे बना सकते हैं, Cl2 के साथ P4 को हीट किया तो ये आ गया. SOCl2 के साथ करते हैं तो अगेन PCl3 एंड SO2 प्लस H2Cl. और मैंने बताया था ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो ये कायरल होता है, ठीक है. देन PF3 एंड PCl3, अगर हम ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस देखें तो किसमें बेटर होगा, PCl3, ठीक है. PCl3 में ऐसा होगा. अच्छा, ये कायरल मॉलिक्यूल ये वाला नहीं है, कायरल मॉलिक्यूल ये है. Then if we are having the properties, so it is colorless oily liquid, hydrolysis in presence of moisture, ये हमें पता ही है. Then कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को ये क्लोरीनेट करता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड पे आते हैं. तो एक्सेस ऑफ ट्राइक्लोरीन के साथ PCl5, SO2 Cl2 के साथ you get PCl5 plus SO2. PCl5 is a yellowish white powder and hydrolysis in moist air gives POCl3 and then H3PO4. PCl5 को हीट किया तो PCl3 plus Cl2. अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ you get these. Ag का PCl5 के साथ AgCl, Sn का PCl5 के साथ SnCl4. क्लोरीनेटिंग एजेंट है PCl5, इन सबको क्लोरीनेट कर रहा है ना, यानी कि ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है. और इनके स्ट्रक्चर्स अपने को पता ही, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट एज
PCl4 plus and PCl6 minus, but PBr5 will exist as PBr4 plus and Br minus. PBr6 minus does not exist because of steric crowd. And PF5 is a phase independent molecule. तो इसलिए वो सॉलिड लिक्विड गैस सब में वो PF5 ही रहता है, फेज इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल. PI5 gaseous does not exist. Solid state में वो exist करता है as PI4 plus and I minus. Then we have oxides of phosphorus, P4O6 and P4O10. तो limited quantity में P4O6 बनेगा और उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H3PO3 बनेगा. एंड अगर ये हमें बोला जाए कि कोल्ड की जगह हॉट वाटर ले रहे हैं तो क्या होगा, H3PO3 का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फिन. ठीक है. P4O6 का स्ट्रक्चर अपने को पता है. ठीक है. और ये P4O10. ठीक है, विच इज एडामेंटाइल स्ट्रक्चर. और एक्सेस O2 में ही P4O10 बनता है. कोल्ड कंडीशंस में यू विल रिपोर्ट HPO3. ये अगेन जे एडवांस का क्वेश्चन. एंड हॉट कंडीशंस में यू विल रिपोर्ट H3PO4, हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10. और उसका हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म भी मैंने आपको पढ़ा रखा. डिहाइड्रेटिंग नेचर बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेटिंग है. ये तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी पानी निकाल देता है इतना, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. उस तक का वो पानी निकालने की क्षमता रखता है. और नाइट्रिक एसिड में वो N2O5 एंड HPO3. HClO4 का अगेन डिहाइड्रेशन करता है Cl2O7. एसिटामाइड का डिहाइड्रेशन करता है तो साइनाइड. ठीक है. स्ट्रक्चर्स भी नो, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. H4P2O6 has PP linkage and H4P2O6 does not have PP linkage. Which of the following statements are correct? So can you repeat? H4P2O6 has PP linkage. H4P2O6 does not have a PP linkage. Which of the following statements are correct? Have a PP linkage. और कोई? Any other answer? Shubhran, Srinath? H4P2O6. हाँ. Has a PP linkage and does not have a PP linkage. Which is correct? Has a PP linkage. अब देखो, H4P2O6 जो है इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल. एक ये, एक ये, और दोनों ही करेक्ट है. यानी कि अगर बोला जाए उसमें पीपी लिंकेज है एक स्टेटमेंट तो करेक्ट, और दूसरा स्टेटमेंट दिया जाए कि उसमें पीपी लिंकेज नहीं है तो वो भी करेक्ट. एनसीईआरटी में कौन सा दिया? इट डज नॉट मैटर. मैं दोनों का प्रूफ भी आपको बता दूं. यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी 4POH 2PO 1PP. H4P2O6 बनता कैसे? H4P2O6 का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H6P2O7 which we can write as H3PO4 plus H3PO3. और अगर मैं H3PO3 ड्रॉ करता हूं तो H3PO3 कैसा होगा, ये हो गया H3PO3. और अगर मैं H3PO4 ड्रॉ करूंगा तो ये हो गया H3PO4. और उससे अगर मैं डिहाइड्रेशन करूंगा तो मेरे पास H4P2O6 है, which is a proof कि this is also a correct structure. So experimentally also it has two structures and both the statements are correct. It has PP linkage, it does not have PP linkage. तो इसको हम लोग इनफैक्ट बोलते हैं आइसोमर. तो इसको हम लोग आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं. तो क्योंकि यहाँ हाइपोफॉस्फोरिक लिखा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है. तो हाइपोफॉस्फोरिक का H4P2O6 का ये सही है. लेकिन अगर मुझे बोला जाए आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड तो ये सही. तो अगर मेरे से सिर्फ H4P2O6 बोला जाए
तो दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, यस और नो? यस सर। समझ में आ गया ना आपको? हाइपोफॉस्फोरिक और आइसो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ओके, तो आई गेस आप लोग को apart from the regular names, the common names are also known to you because आजकल जेई जो है ना वो कॉमन नेम्स भी पूछ रहा है इसमें। तो जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो ये हो गया फॉस्फोनिक। ऑर्थो फॉस्फोरस मतलब ये फॉस्फोनिक, ठीक है। पायरोफॉस्फोरस का मतलब हो गया H4P2O5, हाइपोफॉस्फोरिक H4P2O6, आइसो हाइपोफॉस्फोरिक भी H4P2O6, ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स अपने को पता होने चाहिए। आई एम एज्यूमिंग कि आपको आते होंगे। अब इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग। तो व्हाइट फॉस्फोरस प्लस एल्कली से H3PO2, ये हमने पढ़ा अभी कि हम लोग किसी भी नॉन मेटल का अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। देन P2O3 प्लस H2O, H3PO3, PCl3 प्लस H3PO3, इसको हम हीट नहीं करेंगे नहीं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। तो PCl3 प्लस H3PO3 will give H4P2O5, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एंड रेड फॉस्फोरस और एल्कली लेते हैं, यू गेट H4P2O6, ठीक है। जस्ट हैंग ऑन। हाँ मेरी क्लास चालू। हाँ हाँ हाँ, वो रख ले मम्मी, मैं फिर फोन करके बताता हूँ। मेरे पास नहीं आया। वो मनन को फोन कर लो ना तुम, कॉल मनन, मनन से बात कर। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं H3PO4 कैसे बनाना है। तो P4O10 प्लस हॉट H2O लेंगे तो H3PO4 आएगा, और कोल्ड H2O लेंगे तो HPO3 आएगा। H4P2O7 कैसे बनाए? फॉस्फोरिक एसिड को हीट करके, है ना। यहाँ PCl3 और H3PO3 को हीट नहीं करना है, हीट करेंगे तो लोचा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर HPO3 होल एन अगर अपने को बनाना है तो हम फॉस्फोरस एसिड और ब्रोमीन को एक सील्ड ट्यूब में हीट करेंगे तो हमारे पास HPO3 होल एन आए, ठीक है। तो ये +3 से +5 में जा रहा होगा तो ब्रोमीन किस में जा रहा होगा? Br-। दैट्स व्हाट मस्ट बी हैपनिंग। ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर हमको पता है कि अगर PP बॉन्ड प्रेजेंट है तो पीएच प्रेजेंट नहीं होगा, और किसी भी ऑक्सो एसिड में P डबल बॉन्ड और POH बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। और इसमें n की वैल्यू जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होती है, लेकिन अगर n इक्वल टू 2 होगा, दिस इज द प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ HPO3 होल्ड ट्वाइस, ठीक है। वी मूव फॉरवर्ड इन दिस। और अगर हम H3PO2 का रिएक्शन इससे करते हैं तो दिस बीइंग अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसमें पीएच बॉन्ड है, तो वो इसको रिड्यूस कर देगा इनटू Ag और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू H3PO। एसिडिक स्ट्रेंथ वाइज देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि H3PO3 is most acidic, then H3PO2 and then H3PO4, which is purely experimentally based on Ka values। और reducing nature wise देखें तो regular order है, क्योंकि इसमें more pH bonds हैं, so this is a better reducing, it has better reducing nature than this। Obviously इनको हीट करने से डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। H3PO4 को हीट करते हैं तो O by P रेशियो डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ग्राहम सॉल्ट। ग्राहम सॉल्ट is best known of these long chain polyphosphate and is formed by quenching molten NaPO3। NaPO3 को quench करते हैं हम लोग, तो NaH2PO4, पहले उसको हीट किया 240 के ऊपर, तो NaPO3 होल थ्राइस, फिर 625, तो NaPO3 लिक्विड मेल्ट एंड रैपिड कूलिंग गिव्स NaPO3 होल एन, ग्राहम सॉल्ट, ठीक है। अगर ये होल 6 हो जाता है इनकी वैल्यू तो इसको हम बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट, ठीक है, विच इज यूज्ड अंडर द इंडस्ट्रियल नेम कैलगन, जो कि हमने पढ़ा था हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक में। तो हाइड्रोजन में पढ़ा था हमने फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यू रिमेम्बर।
Yes. यस सर। शील्स ग्रीन, ये कॉमन नेम्स है, कुछ याद रखने होंगे आपको। CuHASO3, नाइट्रोफॉस्फेट ऑफ लाइम, है ना, ये है नाइट्रोफॉस्फेट। CH2PO2 एंड 2CnL3 होल्ड ट्वाइस। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम ये होता है। थॉमस स्लैग ये होता है। ठीक है ना। तो जो वहाँ लेबर होती थी, जो वाइट, जो फॉस्फोरस के साथ काम करती थी, उनके जॉ बोन्स डीके हो जाते थे, एंड दैट डिजीज वाज नोन एज फोजी जॉ, है ना। तो फॉस्फोरस के साथ ये प्रॉब्लम। सो वी आर डन विथ ग्रुप 15। अब इसके कुछ रोड मैप्स टाइप के हैं कि नाइट्रोजन हम कैसे कैसे बना सकते हैं, रिएक्शंस फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, है ना। जैसे बोरॉन के साथ बोरॉन नाइट्रेट, सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन नाइट्रेट, इस तरीके से। ये मेरे मेरे खुद हाथ के लिखे हुए हैं, मेनी ईयर्स अगो, मतलब मोर देन 25 ईयर्स अगो। ठीक है। लेकिन ये रिएक्शंस आज भी रेलेवेंट है, देखो, है ना। तो आप जो एरोज देख रहे हो, दैट इज फॉर द फॉर्मेशन, और जो एरोज निकल रहे हैं, दैट इज फॉर द रिएक्शन। ठीक है। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड प्लस PbO लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, PbCl2 अमोनियम। ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस। तो ये सारे रिएक्शंस आपको यहाँ मिलेंगे, है ना। NH4OH, और इस तरीके से ये सारे रिएक्शंस है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और ये काफी सारे मैंने बना रखे हैं, NO का, NO2 का। तो जितने रिएक्शंस बताएं, वो उससे आपके सारे ये कवर हो जाएंगे, एंड स्टिल यू विल फाइंड 1 or 2 रिएक्शंस व्हिच यू कैन रीजन आउट एंड राइट देम। ठीक है ना। ये कंसेप्ट मैप मैंने बनाया ग्रुप 13, 14 एंड 15 का, विच आई विल शेयर विथ यू। आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर, क्योंकि क्या है कि आपको एब्जॉर्ब भी करना है। तो अब अपने पास बचा ग्रुप 16, 17 एंड 18। श्रीनाथ, यू हैड रिक्वेस्टेड समथिंग, सो आई विल बी शेयरिंग दैट टू यू सून। ओके। Yes. तो ग्रुप ग्रुप 15 हमने कर लिया है। अब मुझे ग्रुप 16, 17 और 18 और कंप्लीट करना है। ठीक है। तो वंस आई डू दैट, देन विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन P ब्लॉक। ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्विजेस। ठीक है। तो वी आर डन अप टिल हियर, और इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आई एम शेयरिंग द नोट्स। ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क और से? Sir, in N2F2, when we said cis was more stable than trans, हाँ हाँ। बट हम लोग F के साथ हम लोग ने ये बोला था ना, जब Cl था तब Cl पे एक डेल माइनस और एक डेल प्लस आ रहा था। तो हाँ, उसके प्लस माइनस एम से वो एक्सप्लेन हो रहा है, बट दैट इज नॉट सिस इफेक्ट। ये N2F2, C2F2H2 में ऑब्जर्वेशनल है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके सर, ओके, सो सी यू सून, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।